asked me in the class. So I will start the lecture by the name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the chapter Partnership Retirement of your second year intermediate. So right now I have announced a test on Wednesday. So the test of partnership retirement will be on Wednesday, upcoming Wednesday, and it will be an online test on Zoom. It will not be on GCR, Google Classroom पे नहीं होगा बेटा. मैं Zoom पे आपका online test लूँगी, and this test will include your MCQs, your fill in the blanks, your theory, and your practice questions also. And if I found that you people are unable to solve it on time, so I will not give you extra time. It will be a short test, so you people have to prepare for your fastest practicing. And maybe I will change the question student to student, so that you people have to work for all the six methods of the retirement. I'm giving you the fastest description. This is your chapter 7 partnership retirement. We have done the partnership retirement in a very deep detail, and from so long you people are enough go through it. Yeah, you must know the methods of partnership retirement. This is the important factor which you have to prepare for your test. You have to prepare for the test like your cases for sales, transfer, withdrawal, adjustments, revaluation, computation of bonus, goodwill, and then maybe I will ask you in small parts. In some part I will ask you what will be the bonus. In some I will ask you what will be the goodwill, what will be the journal entry for the revaluation. Such types of MCQs I will prepare for you, that I will give you the transaction, and I will ask you to prepare the accurate or exact journal entry. So kindly prepare well for this test. Okay, this is just a small revision. This is very important factor for the MCQs. You all have to go through this. This will also be asked in your board examination, that gain will be on debited and loss will be on credited. Then we have few steps on revaluation. These are the 5 steps. So all these 5 steps are included in your revaluation factor, these 5 steps. Okay, and then the today's class I have planned some new chapter for you, new question for you. You have to keep this thing in mind, that gain and loss journal entry, it is very much important. कि बेटा जब आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल हमेशा इंक्रीज होते हैं, एंड लॉस विल कॉज योर कैपिटल विल बी डेबिटेड. So this is the important point that you have to keep in mind. General entry, again the revision अब तक तो you all must, I think, very much cleared in this topic. Now come towards your book problem. That is your, yes, this is your book problem. Hope so it is clear to you all. If it is not clear, you can raise your hand so that I can make it enlarge more. mm, Hope so it is cleared. Yes. Wait for a while, I will confirm from a student. Yes. Okay, this is the question in which we have the queries regarding the different partners. Actually, आप लोगों को पता है कि हमारे पास different partners already मौजूद होते हैं, जिसमें partnership formation कर चुके होते हैं. And after formation and after a period of time, any one of them can leave the firm, or this partner will be a retiring partner due to different circumstances. Now we have the three partners. I told you that what is the main procedure of reading the question, that you have to read the question from the point one, from the step one. Okay, you should not leave any sentence, because it is your accounts and they will give you a tricky part in any statement. कहीं भी वो आपको puzzle कर सकते हैं. So you have to read the question from the first line. Azim, Fahim, and Naeem were partners sharing profit and losses in the ratio of their capital. So you have to highlight the ratio of their capitals. The balance sheet of the firm is stood as under. We have debited side the assets, and the credited side we have equities. On debited side we have cash, account receivable, closing merchandise inventory, and plant assets. ठीक है. Then an equity side, equities means liability plus capital.
We have payables, means all your liabilities. If here we have only one liability, that is your accounts payable. Azim, Fahim, and Naeem's capital. Okay, so here in the next they have given the Naeem retires on the above date. ठीक है, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आपने, सॉरी, वेट, द रिटायरिंग पार्टनर कौन सा था बेटा? नईम था। इसको आपने हाईलाइट कर देना है। उसका कैपिटल है आपके पास 40,000। सो कैपिटल ऑफ नईम शुड बी हाईलाइटेड बिकॉज ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म एंड ही इज लीविंग द फर्म. So we have to focus his capital in mind. Now next what we have to do, we go through here. Naeem retires on the above date and is paid the amount equal to book value after making the following adjustments. ये adjustments करने के बाद हमारे पास जो डाटा आता है वो क्या है? Available cash is paid to him. जो भी available cash होगा वो उसको मिलेगा. Now what is available cash in the firm? दिस इज़ योर अवेलेबल कैश 40,000. अब जैसे जैसे मैं आप लोगों के सामने हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने भी सेम यही हाईलाइटर यूज़ करके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से अपनी कोशिश करनी है कि हम इस तरह ही क्वेश्चन को रीड करें ताकि आपका डाटा साइड बाय साइड एक्सट्रैक्ट होता रहेगा. ठीक है बेटे. And issued a note for the balance. Note for the balance means note payable, and for the balance that your amount of the accounts payable can be a balancing figure. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट्स पेबल के यही 80,000 दिए जाएं. वेन एवर दे यूज़ द वर्ड फॉर द बैलेंस, उसका मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी की अमाउंट होगी वो आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगी. ठीक है. Then we have transaction. Goodwill of the firm is valued 120,000. First of all, in this question, what is the tricky part? That they already give you the calculated amount of goodwill. ठीक है, यूजली बेटा हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, और वो कैसे कैलकुलेट करते थे? जो पार्टनर का कैपिटल होता था और जो अमाउंट हम उसको पेड करते थे उसमें से माइनस करके आप गुडविल कैलकुलेट करते थे. Here, they have already given you the calculated amount of goodwill. Now, whenever we have called calculative amount of goodwill, तो सबसे पहले आप goodwill की journal entry बनाएंगे. Goodwill की nature क्या है आपके पास? Current assets है, intangible current assets है. गुडविल हमेशा आप लोग को पता है कि आपकी फर्म इशू करती है, तो फर्म क्या करेगी? जब गुडविल देगी तो सारे पार्टनर्स को देगी. ठीक है. अब 120,000 पे आपने इनका कैपिटल रेशोज अप्लाई करने हैं. रेशोज ऑफ एज पर दियर कैपिटल रेशोज. तो ज़रा इनके कैपिटल रेशोज कैलकुलेट कीजिएगा. व्हाट विल बी द कैपिटल रेशो ऑफ 100,000, 60 एंड देन 40? So first of all you must calculate the capital ratios. What will be calculators? हम कैसे निकालते हैं इसके ratios? Hope so आप लोग सब कर सकते होंगे. Wait for a while. This is the ratio working which we have done. हमें जितनी भी उसकी कैलकुलेशंस करनी है वो रेशो एज पर देयर कैपिटल रेशोज करनी है. कैपिटल्स आपके पास मिस्टर अजीम, फ़हीम एंड नईम के मेंशन है. अजीम इज़ 100,000, फ़हीम इज़ 60,000 एंड नईम इज़ 40,000. आपके पास इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 100, 60, 40 एंड देन मोर एक्सट्रैक्शन वी हैव 5:3:2. नाउ वी हैव टू कम टूवर्ड्स. सारी प्रैक्टिस आपकी यहीं पर ही हो गई है. हमने इस वक्त डिस्कस किया कि आपने गुडविल किस तरह दी, रेशोज के थ्रू दी. सम ऑफ रेशो आया 5+3+2 10, और फिर इंडिविजुअल 120,000 को हर पार्टनर के इंडिविजुअल रेशो और सम ऑफ रेशो से हमने डिवाइड कर दिया. दैट्स इट. ठीक है. इसकी अगर वर्किंग होगी मैं चेक कर लेती हूँ. यस, वर्किंग इज हियर. ये हमने वर्किंग करी थी 120,000 मल्टीप्लाई बाय 5:10 फॉर द अजीम, फ़हीम एंड नईम. ठीक है बेटे. अच्छा, then next okay, here then we have plant and assets are valued at 200,000. Plants and assets, the plant और assets है, assets when revalued हो रहे हैं, इसका मतलब है assets की वैल्यू है 200,000. बिफोर हमारे पास जो प्लांट्स और उसकी वैल्यू थी 150, तो 150 और इस वक्त हो गई है 120. जब भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है तो यहाँ हमने इसको इंक्रीज और डिक्रीज चेक नहीं करना है. हमें इससे ये पता है कि हमारे पास, सॉरी, 1 पे 200 हो गई, इंक्रीज हुई है. हमारे पास प्लान एंड एसेट्स टू बी रीवैल्यूड, जब भी एसेट्स आपसे रीवैल्यूड का वर्ड यूज़ कर रहा है और उन्होंने यहाँ पर आपको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं भी बोला हुआ, तो आप उसको एसेट्स को बाय डिफ़ॉल्ट उसकी नेचर रिकॉर्ड करेंगे ऑलवेज डेबिटेड पे.
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इन्होंने शो किया हुआ है कि वो पहले 150 है और अब वो इंक्रीज होके 200 हो गए हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया है तो आपने वैसे ही उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर देना है बेटे। सो योर planned assets will be debited. Another account which will be open is your revaluation accounts. Allowance for bad debts is to be maintained 5% on account receivable. अगेन मैं एक्चुअली एम एस वर्ड पे जाना नहीं चाह रही हूँ। अकाउंट रिसीवेबल की आपकी जो वैल्यू होगी, मैं कोशिश करती हूँ जनाब मैं दोबारा आप लोग के पास जाऊँ और इसकी वर्किंग को शो करूँ। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 then divided by 100. What will be the amount which we are getting? The amount of account receivable allowance for bad debts is 5 3s are 30, 3,000. आंसर्स एक दफ़ा करेक्टिफाई चेक कर लीजिएगा प्लीज गर्ल्स। Answers, is the screen clear to you? We have working number 2, that is your account receivable 60,000, and on 60,000 we have 5%. This is your working 2 for the account receivable. Multiply by 5 divided by 100, and then we are getting the value of allowance for bad debts on account receivable. So hope so the value is cleared. I will confirm from my participants. हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू पहले क्वेश्चन में से देखी। द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड 25,000। क्वेश्चन में उसकी 30,000 थी। देन आपने उसकी वैल्यू को जो 30,000 गिवन है उसको कंपेयर करना है 25,000 से। सो योर आंसर विल बी अ 5,000। एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री विच वी आर रिकॉर्डिंग is your merchandise inventory no revaluation debited and merchandise inventory credited because it is decreasing. Okay, yes, so your merchandise inventory will be in credited side and your allowance for bad debts is also on the credited side and your plant assets will be in the debited side. Clear? Acha, then what I will do, वी हैव टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब आपने आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिस तरह कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर ली, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। पहले गुडविल की थी, उसके बाद प्लान एसेट्स, फिर बैड डेट्स एंड फिर इन्वेंट्री। ये तीनों आपकी सॉरी 4 जर्नल एंट्रीज हैं, रिकॉर्ड करनी है आपने। देन हमारे पास के बाद वाला स्टेप है टी अकाउंट का। ठीक है, टी अकाउंट बनाना है आपने रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का टी अकाउंट किस तरह बनाते हैं उसकी मैं आप लोग को एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी आप लोगों के चैनल पे। ठीक है, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। रीवैल्यूएशन का भी सिंपली आपके साथ बनाती हूँ कि अगर हमारे पास एक टी अकाउंट बनाना है आपने, तो उसको टी अकाउंट बनाइए। ठीक है, और इस टी अकाउंट पे अगर ये बन जाता है यहाँ पे तो अच्छा होगा जी। ये एक टी अकाउंट बन गया। रीवैल्यूएशन आप इसकी हेडिंग डालेंगे। पहली एंट्री मैंने देखी है कि सब नंबर 1 मतलब गुडविल वाले में कोई रीवैल्यूएशन नहीं है। नंबर 2 में मेरे पास रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे है, तो आप 50,000 को क्रेडिट साइड पे इस जगह लिख दीजिएगा जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, 50,000। देन नंबर 3 द रीवैल्यूएशन विल बी योर 3,000। ठीक है, देन रीवैल्यूएशन डेबिट साइड 3,000। देन नंबर 5 नहीं, number 4 we have revaluation again on the debited side over here. So in credit side we have 50,000 and on debited side I have 3,000 5,000. That means 8,000 is over here. So the amount of balance CD will be on the debited side. और जब भी आपके पास बैलेंस सीडी इस जगह जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ डेबिटेड साइड पे आपके पास अमाउंट आती है, सो दिस अमाउंट विल बी योर गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, सो गेन ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ऑन द डेबिटेड साइड। हेयर आपके पास 50,000 है क्रेडिटेड साइड पे, यहाँ पे आपके पास आए 8,000। द डिफरेंस ऑफ बैलेंस सीडी विल बी ऑन द डेबिटेड साइड, दैट विल बी योर गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर बेटे? Acha di. Then what we have to do? We have to do in a very simplest way. Then how we are getting this amount? First of all, we getting this amount 52, sorry 42, and we will distribute it as per the ratios of their capitals. जो कि अभी आप लोगों ने calculate किए थे 5:3:2. Now, who is the retiring partner? कौन जा रहा था फर्म से हमारे पास? Wait. Yes, sorry, alhamdulillah.
मिस्टर नईम इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो नईम साहब का, मिस्टर नईम का कैपिटल कितना है? नईम का कैपिटल है बेटे 40,000, ठीक है। द 40,000 इज द कैपिटल ऑफ मिस्टर नईम। सबसे पहली वाली ट्रांजेक्शन में मिस्टर नईम को हमने कैपिटल उनका इंक्रीज हुआ है 24,000 से, ठीक है, जो उनको गुडविल मिली है। एंड देन उसके बाद आपने मिस्टर नईम के पास अगेन उनको मिले हैं 8,400। सो ये वाली अमाउंट मिस्टर नईम के पास ऐड होगी और ये वाली अमाउंट भी मिस्टर नईम के पास ऐड होगी। एक तो फर्म से उनको गुडविल मिली जब वो रिटायर हो रहे थे, और फिर उनको प्रॉफिट भी मिला जब वो फर्म से रिटायर हो रहे थे। सो उनका टोटल जो अमाउंट आ रही है उनका कैपिटल प्लस द गुडविल एंड द अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। ये जो वर्किंग हुई भी इसको आप प्लीज ओमिट कर दीजिएगा। द टोटल अमाउंट विच वी हैव इज 72 72,400. That is the amount of Naeem. As he is the retiring partner, so his capital will be debited. 72,400. The capital will be debited. Then what will be the credited? हमने पढ़ा था the available cash. क्वेश्चन याद करिएगा, उन्होंने क्या कहा था? अवेलेबल कैश वो लेके जाएगा। उसके एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन था ना बेटे, यहाँ पे अवेलेबल कैश इज पेड टू हिम एंड इशूड अ नोट फॉर द बैलेंस। हमने उसको अवेलेबल कैश दे देना है, तो अवेलेबल कैश हमने उसको कितना दिया? 40,000। ये रहा आपके पास हेयर, ठीक है। ये 72,400 कैसे आया, इसको प्लीज अपने पास मेमोराइज कीजिएगा कि जब भी हमारे पास जब रिटायरिंग पार्टनर होता है वो अपने कैपिटल के साथ ऊपर दी हुई एडजस्टमेंट्स में से अगर उसको पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब अगर वो क्रेडिट साइड पे होता है तो हम उसकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर सपोज इसकी एंट्री में ये कहीं डेबिट हुआ होता तो हम उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देते। मींस अगर यहाँ पे लॉस होता तो डेफिनेटली नईम जो है वो डेबिटेड साइड पे होता, तो इसके यही पैसे हम माइनस कर रहे होते। क्लियर है? अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर की जनरल एंट्री बेटा क्या थी? कैपिटल विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। हमने इसको कैपिटल दिया 72,400, कैश दिया 40,000। देन अगेन एक टर्म थी यहाँ पे, इशूड अ नोट फॉर द बैलेंस। इट मीन्स जो भी आपके पास पेबल या लाइबिलिटी होगी वो मिसिंग फिगर होगी। यहाँ आप प्लीज अपने पास ब्रैकेट में शो कर दीजिए ओवर हेयर नोट्स पेबल जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें और लिखें इसको बैलेंसिंग फिगर है 72,400 माइनस 40,000 एंड देन यू विल गेट द वैल्यू 32,400, क्योंकि वो अमाउंट फॉर द बैलेंस है। यहाँ आपने इसकी वर्किंग शो करनी है और प्लीज इसको वर्किंग नंबर 3, जब आप जिस तरह अभी मैं वर्ड पे जाके आप लोग के लिए वर्किंग कर रही हूँ ना, वर्किंग 1 वर्किंग 2, वर्किंग नंबर 3 होगी आप लोग के पास नोट पेएबल में, ठीक है बेटे। सो ये आपके पास वर्किंग नंबर 3 है 72,400 माइनस 40,000। Yes, 72,400 minus 40,000 will be your note payable. Clear? So this is all for today on this question which I would like to share with you. ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास डिफरेंट यू था कि इसमें आपको उन्होंने पहले से एक अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी दी हुई थी एंड देन इसमें रीवैल्यूएशन भी है। मींस इन दिस क्वेश्चन आपके पास दो मेथड ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट हम यूज कर रहे हैं। एक मेथड है आपके पास गुडविल का, इस ओवर हेयर जर्नल एंट्री नंबर 1 में, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है पॉइंट नंबर 1 टिल हेयर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, ठीक है। और रीवैल्यूएशन के आपके पास सेल ट्रांसफर विड्रॉवल के अलावा क्या होता है? गुडविल बोनस और बोनस के अलावा रीवैल्यूएशन। यहाँ पे आपके गुडविल और रीवैल्यूएशन हमने यूज किया है। लास्ट एंट्री बेटे आपकी बनी है रिटायरिंग पार्टनर की, कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। होप सो यू ऑल आर गेटिंग द लेक्चर वेरी वेल। हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी को अपने पास अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर योर टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट में जब ये सारी चीजें आती हैं तो उस वक्त फिर आप लोग परेशान ना हो। सारा जितना भी टेस्ट होगा वो इस थ्योरी पे बेस्ड करता होगा। स्टेप्स और रिवैल्यूएशन भी पूछे जा सकते हैं। देन गेन और लॉस की जर्नल एंट्रीज आप लोग के पास आएंगी। रिवर्स होता है कैपिटल का, मेन एंट्रीज ये है। एंड देन आप लोग के पास इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें सेल एंड ट्रांसफर की मैंने आपको दिखाई थी। वेट मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपकी बुक की थ्योरी है।
दिस इज द थ्योरी ऑफ योर बुक, सेल ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड विड्रॉवल। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज फॉर्म करूंगी बेटे। देन वी हैव रीवैल्यूएशन प्रोसेस, इस थ्योरी को आपने अच्छे से फॉरवर्ड करना है, अपने से गो थ्रू करना है। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कब क्यों कैसे दी जाती है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन कौन से वेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशोज हैं, फ्रैक्शंस है, परसेंटेज में है। And then we have questions for sale of interest, transfer of interest, withdrawal. Then we have goodwill. This is I think revaluation. Yes, this is revaluation. Then we have acha, okay. So this is all the questions which we have done. Thank you so much, girls. Allah Hafiz. You all can leave the class. Allah Hafiz, girls. Thank you so much.